بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن فریدی، اور میرے ساتھ موجود ہیں عنایت اللہ کاشف، مقبول الہی۔ اس پروگرام میں ہم روزمرہ کے ملکی اور مقامی حالات و واقعات پر تبصرہ اور گفتگو کرتے ہیں، اور یہ پروگرام ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، بدھ اور ہفتہ کے روز۔ آج کے حالات حاضرہ کے پروگرام میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ ملکی لیول پر دبئی لیگز پر کریں گے، نجکاری کے روڈ میپ کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم پاکستان، اس پر کریں گے، اور اسمبلی فلور پر جو پارا ہائی ہے اپوزیشن کا اور حکومتی بینچوں کا، اس پر بھی بات کریں گے کہ خواجہ آصف اور عمر ایوب خان کے درمیان کیا وہاں تقاریر ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی۔ اور مقامی طور پر پاسکو ہمارا موضوع ہوگا گندم خریداری کہ کاشتکاروں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کاشتکاروں پر اب تو ایف آئی آرز کا اندراج بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ہمارے سکولوں میں اسٹوڈنٹ کونسلز کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں کل، اس پر بھی بات کریں گے کہ بھی کتنے سکول ہیں اور کن کن عہدوں پر الیکشن ہوں گے۔ تو آج ہماری خاتون ریسکیورز نے ایک بچی کو ریسکیو کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور پاسکو کے حوالے سے جو ہماری ڈپٹی کمشنر لیہ متحرک ہیں، ان کے دوروں پر بھی بات کریں گے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو مقامی خبروں کو ہم ٹچ کر لیتے ہیں۔ ہماری ڈپٹی کمشنر اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بھی ادھر کاشتکاروں پر ایف آئی آرز کا اندراج ہو رہا ہے، اور ادھر ہماری ڈپٹی کمشنر مختلف پاسکو سینٹرز کے دورے بھی کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھی کاشتکاروں کو ہم سہولیات بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیسی سہولیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کی خریداری کا جو سیزن ہے وہ تقریباً اختتامی لمحوں میں گلے میں داخل ہو چکا ہے۔ گندم کھیت میں اب برائے نام رہ گئی ہے۔ گندم کھیت سے نکل کر مڈل مین آڑتی ذخیرہ اندوز کے پاس موجود ہے، اور بھی تھوڑی بہت موجود ہے۔ اس کے لیے کسان جو ہے وہ باردانے محصول کے لیے روزانہ پاسکو سینٹروں پر مارے مارک ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اس کے جو اصحاب ہیں وہ جواب دے چکے، اس کی جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اس کے گوشت میں نہیں ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو جو اس نے جو ادھار لیا ہوا ہے، اس نے جو فصل ادھار لے کر کاشت کی تھی، اس کے اور جو معاشی مسائل ہیں جو اس نے جوڑ رکھے تھے کہ گندم کی فصل آئے گی اور اس فصل سے ہونے والی آمدن کے نتیجے میں وہ اپنے بقایا جات بھی ادا کرے گا اور آئندہ فصل کے لیے اس کی تیاری کرے گا۔ اب اس کے خواب کو چکنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ مارکیٹ میں ذخیرہ اندوز نے مڈل مین نے گندم کو اس طرح کریش کر دیا کہ اب ایک بوری میں لگ بھگ 3000 روپے تک کسان جو ہے وہ سارے کا شکار ہو رہا ہے۔ پاسکو سینٹر پہ جو گندم کی صورتحال ہے، جو ابتدا میں پاسکو نے خود باردار جاری کیا، وہ مرضی کے ساتھ پسندیدہ لوگوں کے ساتھ پاسکو نے فروخت کر دیا۔ اور آپ کو یہ یاد ہے کہ کسان گوڑ اور کسانوں کی تنظیم میں کسان ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ 500 روپے سے لے کر 1000 روپے تک کی بوری جو ہے وہ رشوت کے عوض باردانہ کی کسانوں کو دی گئی ہے۔ تو یہ ایسا بڑا ظلم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیہ میں باردانہ کے حصول اور جو گندم کا لو پرائس ہے، اس سے کسان برادری کو جو خسارہ ہوا، اس میں اگر آپ کھاد میں جو بلیک ہوئی تھی اس کو اگر یہ آپ جمع کر لیں تو عنایت اللہ کاشف صاحب ضلع لیہ کے کسان صرف اس سیزن میں 15 ارب روپے سے محروم ہو چکے، 15 ارب روپے۔ اور جب آپ اتنی بڑی اکانومی کریش کی طرف آپ چلے گئے
तो आप ये समझ लें कि आपकी जो मार्केट है उसका 75% जो ग्राहक है वो अब मार्केट का रुख नहीं करेगा। अगर वो रुख करेगा भी सही तो वो अपने घर के बर्तन बेच कर आएगा, कोई जानवर बेच कर आएगा, उसके पास अपनी फसल के जो हासिल होने वाली इनकम थी वो उसके पास नहीं। इनायत काशिफ साहब, आज हमारे एमएनए ने जो असेंबली फ्लोर पर लिया के काश्तकारों की बात की है, पास्को की बात की है और यहाँ की सूरत हाल वहाँ वाजे की है, आप क्या समझते हैं इसका कोई फायदा होगा हमें, हमारे काश्तकारों को? और इस वक्त मार्केट में जो काश्तकारों से गन्नम आड़ती ले रहा है वो 6500 से 7000 की बोरी ले रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही फरमाई है। वैसे हमारे मकामी एमएलए ने आज जो गवर्नमेंट के दौरान पर असेंबली के फ्लोर पे बात की है, बहुत अच्छी बात है, आवाज उठाई है, पॉजिटिव है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। सिर्फ आवाज उठाना मसले का हल, आवाज उठाना मसले का हल नहीं है। आपको याद होगा इससे कमल नजीब भी बहुत सारे हमारे मेंबरान असेंबली में मौके पर मसले पर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा तब भी कोई भी नहीं निकला है। ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि असेंबली का फ्लोर कभी भी संजीदा मसाइल के लिए हल के लिए वो बना ही नहीं है। वहाँ गालम गलोच हो, वहाँ एक दूसरे के मुर्दे उखाड़ने हो, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, हाँ जी, के बहरान की तरफ आ रहा हूँ। तो असेंबली का फ्लोर जो है वो तो खालिस्तान इस मकसद के लिए है, अवामी मसाइल असेंबली के फ्लोर पे डिस्कस करना शायद हमाकत की करा देती है। रही बात चूंकि फोरम वही है, बात तो वहीं पे होनी है। अब रहा कि एमएनए साहब से अगर ये पूछा जाए कि उन्होंने मकामी तौर पे जो बारदाना जो है पास्को से लिया, दिया, कितना लिया, किन किन को दिलाया, कहाँ दिलाया, कैसे दिलाया, क्या हुआ। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करूं कि हमारे जितने भी पार्लिमानी क्लास है ना, चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है, वो सारे के सारे मुस्तफीद हुए हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पार्लिमानी आपकी क्लास है, इस मौजू पे सारे एक वो जैसे ये 5 उंगलियां एक जगह पे इकट्ठी होती है ना रोटी पे, रोटी का लुकमा तोड़ते हुए ये 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं। ये अवाम की लूट मार के लिए जब भी इनको मौका मिलता है तो ये सारे के सारे मुत्तहिद हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे 5 उंगलियों की तरह जो है इत्तेहाद हो जाता है, नवाला समझ के जो है वो तोड़ते भी हैं, खाते भी हैं, फिर जोड़ते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो मसला है ये हल होगा। अब आपकी आ गई दूसरी बात कि किसान 15 अरब रुपए का टीका तो उनको लग ही चुका है और ये टीका मजीद बढ़ेगा। क्यों? मार्केट गंदम की क्रैश कर चुकी है। आज की रोटी के रेट जो है वो तो हुकूमत नाफिज करवा रही थी ना, 12 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए। हाँ जी, अब मार्केट में रोटी का रेट जो है और रुपए को 10 रुपए। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज के दिन की बात बता रहा हूँ। सही। ठीक, क्यों? वो जब गंदम मार्केट में इतनी सस्ती हो गई है, हाँ जी, मार्केट में 4700 का वो जो उनका रेट था 9700 रुपए, हाँ जी, वहां से गंदम आ गई है 6500 पर, हाँ जी, 6400 रुपए पे। अभी नीचे आएगी, मजीद ये आनी है, यूं समझ ले कि ये 5500 5800 जब यहाँ पे आएगी तो फिर किसान का क्या हाल होगा। अब जब उनकी खाद लेने की बारी थी, जब उनका डीजल लेने की बारी थी, जब उनकी उस वक्त तो कोई हरकत नहीं आती थी किसी को, और किसी ने कोई की भी नहीं। हाँ जी, ज़राई मदाखिल जितने भी हैं वो तमाम के तमाम किसान महंगे खरीद करते हैं। ठीक है, अब जब उनकी फसल लेने का टाइम आया है तो क्या चाल चली गई है। इमरान रियाज खान ने खबर ये ब्रेक की है कि यूक्रेन से आने वाली गंदम ली गई, हाँ जी, और वो ली गई 3000 के रेट पे, सही, और उसको सेल किया गया 4700 रुपए के रेट पे। और यूं 2 लोगों ने मिलके, एक साहब बहुत बड़े आदमी है, सही है, और एक आपके वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने नाम दिया है। जो दूसरे साहब थे उनका नाम उन्होंने शायद शौरी तौर पे नहीं लिया, सही वो है, नाम लेते हुए शायद घबरा रहे थे। तो ये जनाब जो उन्होंने कहा कि 85 अरब रुपए का टीका वो लग गया है, वो ऑलरेडी अवाम को लग चुका हुआ है। सही है, कि वहां से 3000 रुपए से, और वो गंदम है, वो गंदम खाने के काबिल भी नहीं है। ये तो अलग सवाल है ना कि खाने के काबिल है या नहीं है, ये तो अलग सवाल है कि उसके अंदर रहता है,
उसके अंदर उसकी हालत हाँ कैसी जी, है, क्या है क्या बिल्कुल नहीं। जो सोने वर्गी आपके गन्नों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसको उन्होंने रोल दिया है, रोल दिया है। तबाह कर दिया, और आपके किसान को भी तबाह कर दिया। अच्छा, यहाँ कमाल की बात, हाँ कोई किसान तंजीम आपको मार्केट में नजर नहीं आएगी, नहीं, वो बस वो सारा लगाने वाले बयानात बयान तक। देंगे, हाँ जी, सारे सो गए। सारे सो गए। यहाँ हमारी डिप्टी कमिश्नर लिया जो है वो अमीरा बेदार साहबा, वो आजकल बहुत मुतहरिक है, पास्को सेंटर्स के दौरे कर रही हैं वो क्या बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने जो है ना वो पास्को सेंटर के जो उनके दौरे हैं, और उसके साथ मलिक साहब एक और भी मुझे जो मालूमात है, वो काश्तकारों पर FIR भी हो रही हैं। देखिए ये होना है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि किसान भाई जो छोटा काश्तकार है, 5 एकड़ का, 7-8 एकड़ का, 10 एकड़ का काश्तकार, उसके पास तो जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए वो मतलूबा वसाइल नहीं है जो उसे 4 बच्चों के घराने के साथ, मियाँ बीवी और अगर उसके माँ बाप भी उसके साथ रहते हैं, तो ये 8 अफराद का ये कुनबा 8 एकड़ तो ये रन नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए जाहिर है फिर उस पे आपने ऊपर जो कटौतियां कर दी, ऊपर जो आपने नजायज जो है मजाले शुरू कर दिए, और उसके बाद आपने पासबुक के हवाले से आपने ऐसे ऐसे फैसले उस पर ठोक दिए, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्यों? उसको आड़ती का फोन आ रहा है, उसको पेस्टिसाइड डीलर का फोन आ रहा है, क्योंकि अब आपने गन्ना अपनी उगा ली है, अब हमारे पैसे दो। जो उसने खाद, बीज, डीजल उसने उधार पर खरीद के अपनी फसल काश्त की थी, इस उम्मीद पर माफी चाहता हूँ कि जब गन्ने की फसल आएगी तो उस फसल को बेच करके आपको पैसे आपके लौटा दूंगा। तो अब जबकि फसल आ गई और उसको इतनी अक्लमंदी और इस चाबक दस्ती के साथ उसको बर्बाद किया गया कि अब किसान जो है वो नजर नहीं आ रहा कि अगले मरतबा वो गन्ने की फसल काश्त करेगा या नहीं करेगा। अब रहा डिप्टी कमिश्नर साहब के जो रिजल्ट है, जाहिर है जिला रैया के वो इस वक्त इंतजामी हेड है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन पर ये अमरीन फर्ज है कि वो अपने जिला लिया के तमाम उन मराकज उन पॉइंट्स पर विजिट करें जहां इस वक्त पब्लिक जो है वो बेचैनी का शिकार है, ताकि वो लोगों के नब्ज पे हाथ रखे और ये जान सके कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको किस तरह दूर किया जा सकता है। 5-7 FIR दे दें, वो हो जाएगा, नब्ज पे हाथ आ जाएगी, नब्ज पे हाथ आ जाएगी, इसे वो आप देखें कि पासपोर्ट का जो अमला है और किसान है, वो तो आपस में ये शिकायत शुरू हो गई है कि दुपट्टा में झगड़ा हो गया, पीर जद्दी में झगड़ा हो गया, जम्मू शाह में रोड ब्लॉक हो गया, चौकाजम में हो गया, गोरी अड्डा पे हो गया। तो ये तो सारे मसाइल एक तो नजर मलिक आ साहब रहे हैं। आज असेंबली फ्लोर पर हमारे MNA साहब ने एक बात की थी कि भाई ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, जी तो उन्होंने वहां असेंबली फ्लोर पर कहा कि आज काश्तकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है इस ज़राअत ने। देखिए MNA हमारे नौजवान है और हमें उनसे बड़ी तवक्को है, मुझे जाती तौर पर भी उनसे बड़ी तवक्को है। वो नौजवान है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं और मजबूत सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये अपने MNA साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये बात कहने के लिए उन्होंने उनको 600 किलोमीटर का सफर उन्होंने किया, वो लिया में बैठ कर वो बात करते हैं, लिया में किसी सेंटर पे बैठ के पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं, लिया में डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं, AC ऑफिस लिया में बात करते हैं, पासको को जो है ऑफिस है वो वहां जाकर वो बात करते हैं, पासको मरकज का ऑफिस है। हाँ ठीक जी, है, तो वहां वो जाकर बात करते हैं, उन्हें ये बात कहने के लिए इतने सफर करने की जरूरत पेश ना आती, ताकि जब वो यहाँ ये बात कर चुके होते तो वो उनको इस बात का अंदाजा होता कि मेरे हल्के के कितने लोगों के खिलाफ FIR कटी है, मेरे लोगों के का कितना माली नुकसान नहीं हुआ वो है, ये मेरे भी तो लोग जो है बताया ना, अपनी अराजी हमारी के पार्लिमानी कलाम ये भी तो बताया ना कि भाई उन्होंने पासको से अब तक कितना बारदाना वसूल कर चुके हैं। ये अगर वो यहाँ बैठकर बात करते तो फिर कोई मीडिया पर्सन उनसे पूछता कि जनाब आप MNA साहब है, आपके MPA साहबान है और दीगर जो पॉलिटिकल शख्सियात है, उनकी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं आ रही कि भाई बारदाना नहीं मिल रहा, उन्हें 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 तो वो कोई चाहे शिकायत नहीं है। अपोजिशन में है चाहे इक़्तिदार में है। देखिए उनको तो कोई शिकायत नहीं है, अगर शिकायत खुदा बख्श को है और मोहम्मद अली को है तो उसकी तो बात कोई नहीं कर रहा, वो उसकी तो क्यादत कोई नहीं कर रहा, वो तो ऐसे शुतर बेबहार लोग परेशान है, कभी वो इस तरफ चले जाते हैं,
पहले पास को तो पीछे भागते हमारी रहे, डिप्टी कमिश्नर उसके के बाद दौरे जो है ये कोई फायदामंद होंगे काश्तकारों के लिए? देखिए एक उम्मीद तो है ना, एक वो उम्मीद है। देखिए मैं, अगर आप मुझे इस बात की इजाजत दें तो फिर मैं तो ये अर्ज करूंगा कि लोगों में, पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन पैदा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकारी इदारों ने ली हुई है। ली हुई है। वो तमाम किस्म के सरकारी इदारे, अकेला पासको नहीं है। अब हम पासको का तो रो रहे कि तहसील नैया में ये हो गया वो हो गया, ये तहसील करोड़ और तहसील जुबारा की हम बात तो नहीं कर रहे। वहाँ तो एक एक बोरी अब देखें ना, हमारे जिले की 3 तहसीलें हैं, 3 तहसीलों में जो एक तहसील है वो पासको ने खरीदारी करनी है, बाकी 2 तहसीलों में महकमा खुराक पंजाब ने खरीदारी करनी है, और वो नहीं वो है, तो है ही नहीं। वो तो ले नहीं अब रहा। ये देखिए मलिक हाँ इशफाक जी। अवान साहब जो है ये मुस्लिम लीग के किसान विंग के सदर हैं, तो ये भी रो रहे हैं कि जिला लिया में पासको सेंटर तमाम के तमाम नाकाम और मन चाहे तकसीमें सब के सब एक दूसरे से आगे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हम किसान भाइयों के साथ हैं, मगर जिनके खिलाफ जितनी एफआईआर हुई है वो गलत हुई। मलिक इशफाक अवान साहब, हुकूमत आपकी है, आपकी है, हाँ जी। आगे हैं, आप आगे हैं, लोगों को बताएं, लोगों की क्यादत करें। मुस्लिम लीग किसान विंग के मेरे ख्याल में ये सदर है, सदर है, जिले प्रेसिडेंट है। तो फिर ये तो हम रो रहे हैं और आप हमारे साथ हमारे आंसू पूछने का बंदोबस्त करें, लोगों को गंदम का मसला हल करवाएं, ना कि हमें ये बताएं कि जनाब पासको सेंटर पर ये नाकामी हुई है और मन चाही तकसीम हुई, ये हमें पता है। अच्छा मलिक साहब, एक और खबर की तरफ चलते हैं कि नई लीडरशिप की तैयारी के लिए जी स्कूलों में स्कूल कौंसिल के हुकूमत पंजाब इलेक्शन करवाने जा रही है। जी जिला लिया में कल इलेक्शन होने जा रहा है जी स्टूडेंट कौंसिल का, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूंगा कि जी वैसे तो इमरान खान साहब की जो दौर हुकूमत है उनकी काफी सारे काम हमारी मौजूदा हुकूमत ने खत्म कर दिए, मगर ये वो स्कीम है, इस स्कीम को पिछले दौर हुकूमत ने शुरू किया था और इस हुकूमत ने उसको कंटिन्यू किया है। ठीक है ना जी। ये वो अमल है जिसको हम स्टूडेंट ये स्कूल लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी कमाल शफकत और कमाल दानिशमंदी है इनायतुल्लाह काशिफ साहब। स्कूलों के लिए तो ये इलेक्शन जो है बड़े जरूरी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये जरूरी नहीं है। वहाँ ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, वहाँ बच्चों की जहाँ लीडरशिप, वहाँ मेन लीडरशिप तैयार होकर जाती है। हमारी इस वक्त जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनमें तमाम स्टूडेंट लीडर, ज्यादातर स्टूडेंट लीडर थे। इनायतुल्लाह काशिफ साहब, इस पे मैं चाहूंगा कि आप जरूर बात करें। ये जिला लिया में 16 मई को इंतखाबात होंगे, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और नुमाइंदान। ये हमारे स्कूलों की तादाद 192 स्कूल है और एलिमेंट्री के 220 स्कूल है जहाँ ये इंतखाबात होंगे। 4,66,000 जिसमें मैं तो सॉरी कुल जो है ना, कुल मलिक साहब 46,693 तलबा और 39,172 तालबात है। में वो अपना वोट कास्ट करेगी। तो ये देखे ना जी, स्कूल लेवल में तो आप हमारे अच्छा फिर इसका ये कोई इनपुट नहीं बता रहा कि पिछले दफा जो इलेक्शन हुए हैं और उसके नतीजे में जो स्टूडेंट काउंसिल बनी है उसमें कितनी लीडरशिप तैयार हुई, उसमें क्या हुआ, उनके निशानदेही पे आपने क्या किया है। ये को लगता है कि मुझे डोनर की कार्रवाई लगती है कि उसने आपको कह दिया कि जनाब ये डोनेशन है और आपने इलेक्शन कराना। मलिक साहब, जहाँ तक है ना जी, स्कूलों में क्यादत, बच्चों में क्यादत का, हाँ जी, वो ठीक है, बच्चों में क्लास में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई प्राक्टर बन रहा है, कोई फलाना बन रहा है, कोई फलाना बन रहा है, फिर उनकी काउंसलें वजूद में आ रही हैं, अच्छी बात है कि शायद बच्चों की तरबियत का कोई बेहतर निजाम निकल आए, शायद एक अच्छी उम्मीद पे चल, दुनिया कायम है, दुनिया भी कायम है, चलो हम भी चल पड़ते हैं। अगरचे तवक्को नहीं है हमें कि कोई अच्छाई जो है वो वहां से बरामद होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कोई अच्छाई निकल आए। जहां तक ताल्लुक है कि स्कूलों के अंदर जहां पर मासूम बच्चे स्कूल टीचर के डर से वो बात करने से कतराते हैं, वहां पर तो आप स्कूल काउंसलें दे रहे हैं। कॉलेज लेवल पे, डिग्री कॉलेज लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएट कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे ये स्टूडेंट काउंसिल कायम क्यों नहीं की जा रही है? इसलिए कायम नहीं की जा रही है कि फिर वहां से एक सियासी गहमा गहमी का आगाज नए सिरे से आगाज होगा और एक नई स्टूडेंट की आदत जो है वो उभर कर सामने आएगी।
آپ کو یاد ہوگا آپ کے زمانے میں یقیناً کالج کے کونسلیں ہوتی تھیں، الیکشن ہوتے تھے، جی اور وہ ایک پورا ہلا گلا اور جماعتی بنیاد پر ہوا کرتے تھے. جماعتی بنیادوں پہ بھی ہوتے تھے. اس وقت پی ایس ایف تھی, این ایف سی, این ایس ایس تھی, اور اسی طرح کی اسلامی تنظیمیں. جمعیت طلبہ تھی, جے ٹھیک یو ہو آئی گیا. کی تھی. یہ سارے جو ہے JDI مل ملا کے کوئی نہ کوئی ایک راستہ. آج دیکھیں یہ فرید پراچا ہو گئے, آپ کے لیاقت بلوچ ہو ہاں گئے, جی, یہ اچھا مین سٹریم مین سٹریم جتنے بھی لیڈر جاوید جاوید ہاشمی آپ ہاشمی کے ہے, ہو گئے, وہ کیسر ہے حسن کیسر ہو گیا, یہ سارے خواجہ 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 سعد رفیق ہے, اس طرح کے لوگ جو ہے یہ ہاں جی, اسٹوڈنٹ کونسلوں کے پیدا ہوا ہے. حسن اقبال ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی لیکن یہ کام نہیں ہوگا, اور یہ کام ہمیں بارے میں نہیں ہے. اگر ہم نے اس کا آغاز کر دیا تو پھر جو مطالبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی جان یہ جو اسٹوڈنٹ, یہ جو ہماری یونین کونسل لیول پہ یہ جو آپ بیج بونے جا رہے ہیں, اس کا اثر وہاں تک بھی جانا چاہیے. اور پھر اس کا اثر جب یونین کونسل کی سطح پہ آئے گا, مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ حلقہ وائز جو ہے نا وہ تنظیمیں بنائی جائیں, اور عہدے دار پورے کرنے جو ہے نا وہ لالے پڑ گئے, مشکل ہو گئے, مشکل ہو گئے کہ کون سی یونین کونسل میں کون سے عہدیدار دیے جائیں. جی اور پھر یعنی آپ کا حلقہ 280 ہے, 280 کی جتنی یونین کونسلیں ہیں وہاں سے عہدیدار, پھر 280 پورے حلقے کے عہدیدار, پھر آپ نے تحصیل کے, اور اسی طرح آپ نے ضلع کے, اور اسی طرح آپ نے ڈویژن کے, وہ پھر لالے پڑ گئے. ہاں جی, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے یہ تجربہ نہیں کرنا, نکالا اسے تو نئے لوگ آ جائیں گے. ظاہر ہے جب آپ یونین کونسل سطح پہ ایک نئے نوجوان کو موقع دیتے ہیں بالکل, ہاں جی, تو وہ کوئی نہ کوئی چند چڑھا ہی دیتا ہے. پھر اور جب چند چڑھتا ہے تو پھر لوگوں کو پسند کو نہیں آتا, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جو پریشان ہو ہماری جاتا ہے. ایلیٹ سیاسی کلاس ہے نا, اس کو پریشانی ہو جاتی ہے, کیونکہ نیچے سے پھر جب ورکر لیول سے جب لیڈرشپ اوپر آنا شروع ہوتی ہے تو ایلیٹ کلاس کا پھر صفایا ہونا شروع اسی ہو لیے میں جاتا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ یہ یونیورسٹی کے لیول پہ, کالج لیول پہ ایلیٹ کلاس کو یہ بارے میں نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا, پرائمری سکول, مڈل سکول اور ہائی سکول, ان میں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, پرائمری میرا جو بچہ ہے, ہاں جی, 5ویں میں پڑھتا ہاں ہے, جی, وہ اسکول بچے کی کیا وہاں پہ وہ نمائندگی کرے گا, ذرا مجھے سمجھایا تو صحیح. اور جسے خود روٹی کھانا نہیں آتا, اس کی ماں اس کو لقمے بنا بنا کے اس کے منہ میں دیتی ہے, وہ کیا نمائندگی کرے گا اپنے کلاس کے, اپنے مسائل کی کیا نشاندہی کرے گا؟ دیکھیں نا, ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, جب بڑے اداروں میں, یونیورسٹی میں, کالجز میں جب ایسے جو جمہوری پروسیس شروع ہو جائے گا تو پھر وہاں سے لیڈرشپ بھی نکلے گی. تو لیڈرشپ جب نکلتی ہے تو ہمارے تو لیڈروں کا اور کام ہے, وہ دبئی لیکس آج کل بڑا شور ہو گیا ہے دبئی لیکس کا. سب بڑی نظر رکھتے ہیں دبئی لیکس پہ. نہیں, میری تو کوئی نظر نہیں ہے جی, کیونکہ میں تو غریب جس میں سیاستدان بھی ہے, جس میں ہمارے جرنیل بھی ہیں, ہمارے بیوروکریٹ بھی ہیں, کوئی نہیں رہ گیا. اچھا, یہ اس کی جو ٹائمنگ ہے نا جی, ہاں جی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایسے موقع پہ جب آپ نجکاری کرنے جا رہے ہیں, پلان دیا آپ ہاں جی, نے, ایک یہ, دوسرا ملک کے اندر سیاسی بحران جو ہے وہ عروج پر ہے, پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہاں جی, اور گہرا ہو رہا ہے. ہاں جی, ایسے موقع پہ یہ دبئی لیکس کا آنا اور پراپرٹیز, اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار کی کرسی پر براجمان ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہیں اور اس میں اپوزیشن بھی ہے. اچھا, اپوزیشن کے بھی جو ہے وہ چند لوگ ہیں, نہیں بڑے پیمانے پہ نہیں. دیکھیں نا, ابھی تو جو 17,000 نام باہر نکلے ہیں نا, صحیح ہے, نام تو زیادہ ہیں, مگر ہمارے ملک کے جو ہے ایم لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں, ایم لوگ, کہ آصف علی زرداری کی بچیوں کے نام آ گئے, بچوں کے نام آ گئے ہے نا, یہ نواز شریف کے بیٹے کا دوبارہ نام آ گئے. یعنی پاکستان کی جو مسلم لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی مین سٹریم کی عادت ہے وہ پھر اس کی لپیٹ میں آ گئی. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ دبئی لیکس کیا یہ اتفاق ہے یا پھر یہ کوئی پلان ہے؟ اب سوال یہ ہے. دیکھیں جی, یہ پروجیکٹ جو تھا نا, یہ پروجیکٹ جو تھا, یہ امریکہ کی ایک تنظیم ہے, یہ پروجیکٹ ان کا تھا بیسیکلی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو بھی واقعہ خراب ہوتا ہے اس کے پیچھے شہاب ہوتا ہے. یہ خالی علت ملک صاحب دبئی لیکس نہیں ہے. عنایت اللہ کاشف صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج ہم دبئی لیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں,
पाकिस्तान में ये सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन ब्रेक की थी अब उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल मोहतरम हक साहब सिराजुल हक ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया कि उस वक्त उन्होंने 13-14 नाम दिए थे कि इनके पास फॉरेन अकाउंट्स की मद में 17 अरब डॉलर चंद लोगों का वो तकरीबन 20 अंडर 20 लोग थे, सही है, ठीक है, 17-18-19 लोग, 17-18 के पास 20 अरब डॉलर है, ठीक है। और ये जो 20 अरब डॉलर है अब ये निकल के और आगे बढ़ गए 17,000 हो गए। तो इज्जत माब इनायतुल्लाह काशी साहब और अब्दुल फौजी साहब इस पे इस हकीकत पे इस आईने पे कौन तहकीक करेगा, तहकीक के नतीजे में सामने आने वाली मालूमात पे कौन यकीन करेगा, और सबसे बढ़कर ये है कि हमारा जो वोटर है, हमारा जो आम शहरी है, क्या वो इस सारे हकायक को तस्लीम करने के लिए तैयार है? क्यों हम तज्जिया करने की सलाहियत से आ रही है, हम अपनी पसंदीदा शख्सियत के सहर में मुब्तला है, और इस बात से कतई नज़र के हकायक की दुनिया के रिजल्ट्स क्या है, बात हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हम उस पर तवज्जो नहीं देने के लिए तैयार। हम अपने पसंदीदा आदमी शख्सियत रहनुमा को ही बरतर और बुलंद तर देखने और उसके लिए हम मसरूफ़ अमल हैं। जब तक हम मेरिट की बुनियाद पर ये चीज़ों को देखने की आदत नहीं डालेंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता। बाकी रहा निजकारी और उसका टाइम, इनके पास हमारे तमाम हुक्मरानों के पास तो मुल्की मसाइल का हल ही है कि ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। हम आम आदमी जो है तो वो क्या करता है कि जब हम किसानों का जो रोना रो रहे हैं, अगली फसल काश्त करने के लिए उसके पास क्या है, दरख्त बेच दो, जानवर बेच दो, 5 मरले या 5 कनाल बेच दो, और यही काम हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। इसके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था, उनके पास तो ऑप्शन है मसलन कि आपके पास इन सरकार की जो गाड़ियां हैं, सिर्फ उन गाड़ियों को ही आप उस पर नजरसानी कर दें अपनी ट्रांसपोर्ट पे, कि उसमें देख लें कि कितना आप फ्यूल आप यूज कर रहे हैं, कितनी वैसे गाड़ियां फ्यूल तो अलग बात है, आप ये देखें ना वो गाड़ी कितनी कीमती है, गाड़ियां कितनी कीमती है, और उनकी रिपेयर के नाम पे हाँ जी, सालाना कितना खर्च हो रहा है। उसके बाद यह है कि आप धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, आप वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और कर्जे लेकर और निजकारी आप कर रहे हैं कि इदारे बेकार हो गए, इदारे मैंने बेकार अच्छा, किए। वजीर आजम पाकिस्तान ने निजकारी की बात आपने की है, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने निजकारी का रोड मैप भी दे दिया है। उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की प्राइवेटाइजेशन होगी इन्हें साहब, चाहे वो नफा बख्श हो या खसारे में हो। अब हुकूमत जो है ना जी वो इस लेवल पे आ गई है, कोई भी हुकूमत हो, जी तथा नजर नून लीग, काफ लीग और ये तहरीक इंसाफ और ये और वो, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ भी यही मंसूबा लेके हाँ आई जी, थी कि हम जनाब ये गैर मुनाफा बख्श इदारे भेज देंगे। हाँ जी, इन्होंने मुनाफा बख्श भी साथ शामिल शामिल दिया है। कर दिए हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट ये बनाया जा रहा है कि हुकूमत का काम पॉलिसी मेकिंग है, हुकूमत का काम इदारे चलाना नहीं है। इदारे चलाना उन लोगों का काम है जो इदारे बनाते भी हैं, चलाते भी हैं। हुकूमत ना इदारे बनाएगी ना हुकूमत चलाएगी, न दुनिया के अंदर अब ये चीजें मौजूद हैं। सही है, हमारा काम है पॉलिसी देना, उस पॉलिसी के मुताबिक इदारों का चलना। ये है निजकारी की बेस लाइन, जिस सही है, बुनियाद पे निजकारी होने जा रही है। अब मुनाफा बख्श और जब ये बेस लाइन आप बनाएंगे तो उसमें फिर मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श का तस्वुर खत्म हो जाएगा। इससे पहले ये था कि वो इदारे जो खसारे का सबब है उनको सेल कर दें ताकि वो जो हुकूमती खसारा है वो कम हो और बाकी जो मुनाफा बख्श है हुकूमत का पहिया चलता वो रहे। चलता रहे। अब ये नहीं है, अब सीधी सीधी पॉलिसी मेकिंग पे बात आ गई है। अब इसका होगा क्या? तमाम स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, तमाम हॉस्पिटल आउटसोर्स हो जाएंगे, तमाम आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं वो जनाब सेल पे लग जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? वो लेने वाले कौन होंगे? आप और मैं तो लेने से नहीं, हाँ, मगर मकबूल साहब ने शायद कोई खजाना छुपाया हुआ हो, कोई एक आदमी टाइल पकड़ लें, कोई एक आदमी
मुल्तान से पीडी जाने वाली ट्रेन खरीद ले, जहाज खरीदे, कोई एक आध हमारा स्कूल खरीद ले, तो ये हो सकता है। लेकिन ये खरीदेगा कौन, क्वेश्चन तो ये है ना। वही इसने वही खरीदना वही वही एलीट वही क्लास वही elite क्लास इनको खरीदेगी, क्योंकि elite जो क्लास दुबई लीग्स में है। हाय हाय पैसे तो उनके पास अच्छा है। सिर्फ ये तो अभी दुबई लीग्स है ना, ये तो फिर इनकी जायदादें दीगर ममालिक में भी सर, इनसे ज्यादा है पैसा ना। किसके पास हाँ, है? पैसा पैसा उनके उनके पास पास है। है। न आपकी जेब में पैसे हैं, न मलिक साहब की जेब में पैसे हैं, न मेरे पास पैसे हैं, न हमारी अवाम उन्नास के पास पैसे हैं। हमारी अवाम उन्नास की जेबों पर तो डाके लगा के पैसे वो ले गए, ले गए हाँ, 85 डॉलर ले गए, आगे भी ले रहे हैं। आगे भी ले रहे हैं। या तो मैं उन्होंने ये इदारे लेने हैं, वही प्राइवेट, ये एक भाईजान बात ये है, गठजोड़ है किसका? ब्यूरोक्रेसी का, सियासतदान का, जर्नलों का, जजों का, और ये इनका गठजोड़ है। ये गठजोड़ के अंदर लोगों तक कुछ जाने देना चाहते ही नहीं, सही है। लोगों तक की जाने देने की इनकी ख्वाहिश नहीं। ये कहते हैं कि यार अगर फरीदी साहब ने अच्छी टोपी पहन ली हुई है तो यार ये छीन लो, कैसे छीननी है, मनसूबा बंदी करेंगे, आपके रास्ते में किसी न किसी बंदे को खड़ा कर देंगे, इनकी टोपी आपने उतारनी है। नहीं, टोपी टोपी उतारने की बात कर रहे हैं। आज आसिफ साहब ने असेंबली फ्लोर पर बात की है कि मुल्क में आइन शिकनी का दरवाजा अयूब खान ने खोला था, इसमें कोई दूसरी बात और नहीं। उसके जवाब में उमर अयूब खान ने यह कहा है कि अयूब खान एक तारीख का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो वापस ले। अयूब खान तारीख का हिस्सा है, बुरी तारीख का हिस्सा है, अच्छी तारीख का हिस्सा नहीं। अयूब खान हिस्सा है मुल्क की तारीख का, लेकिन उसने नहीं आइन तोड़ा है। नहीं, उनके दौर में पैसे की तो फरामानी थी। सर, उधार नहीं है ना। नहीं नहीं, जितने भी बड़े सब बड़े देख प्रोजेक्ट रहे बने हैं, हैं उनके दौर में क्या बने थे। मार्शल नहीं लगाया उसने? क्या उसने आइन नहीं तोड़ा? इतना बता दे मुझे, अगर उसने आइन नहीं तोड़ा, मार्शल नहीं लगाया, आप उसे अपनी जिम्मा करार दे रहे, पैसे की फरावानी पे आप लानत भेजे। पैसा तब तो था ही सही, अवाम के पास भी था, लोग भी खुशहाल थे, अवाम भी खुशहाल थे, सबके पास पैसा था, सब रोटी खा रहे थे, अब रोटी को तरस रहे हैं ना। मुझे ये बताएं, उसने आइन तोड़ा है या नहीं तोड़ा? उसने मार्शल लगाई है या नहीं लगाई? उसने हुकूमत को डिरेल किया है या नहीं किया? उसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया? अगर उसने ये सारे काम किए हैं तो ही इज क्रिमिनल, उसका एक क्रिमिनल है। असेंबली फ्लोर पर जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, जी ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख है, क़याम पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक, वो आपको पता है कि बड़ी कुर्बानियाँ उसमें शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान में, तहरीक पाकिस्तान में बरसगीर के मासूम शहरियों ने अपने खून की कुर्बानी दी, अपने बहुत कुछ की कुर्बानी दी। उसके बाद हमारे मुल्क में जो सियासी अनारकी आई है, बद इंतजामी ने दरवाजे खोले नहीं है, रास्ख हो गए, ठीक है। वो अब उसका नतीजा है कि आज तीसरी नस्ल जो है वो ये दुख पीट रही है कि पाकिस्तान को, उसको दलदल से निकाला जाए। अब अच्छा, बदकिस्मती ये है कि हम तो ये पीटे ही पीटे, जिनके सबब बीमार हुए थे उसी अतार के लौंडे से हम दवा लेते हैं, वो खुद पीट रहे हैं जो इस बद इंतजामी में शामिल थे, साजिश का हिस्सा थे। आप ये देखें कि सानिया सकूत, एक बंदे ने, मैं मालूम चाहता हूँ मलिक साहब, सकूत ढाका से शुरू कीजिएगा। जी जी, एक बंदे ने पार्लियामेंट के फरोग पे आज माफी मांगी है, और वो था अली मोहम्मद खान। उसने कहा मेरे दादे को अयूब काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मैं कौम से माफी मांगता हूँ। आए सारे माफी मांगे, एक बंदा, ये यार कोई तो आया है कि जिसने कहा कि मैं माफी मांगता हूँ अपने दादे के हक की। इनायतुल्लाह साहब, सकूत हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में, हमारे दीगर मुख्तदर हलकों में सकूत ढाका से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। उसके बाद एक फिर मामलात आए हैं, 3 दफा फिर माशाल्लाह आया, सियासी अनारकी आई, सियासी बद इंतजामी आई, अदालती मामलात आए, किस किस का नाम लिया जाए? वो कहानी का कोई एक सिरा हो तो वहां से शुरू की जाए, ठीक है ना जी। हमारा टाउन लेवल से लेकर ऊपर टॉप लेवल तक एक ही सोच और नीयत के साथ हम चल रहे हैं। अब देख ना, हम सारे रोना रो रहे हैं कि जी गंदम का बहरान है, गंदम 6600 पे आ गई, 7000 पे आ गई। वो भाई आ गई है ना, नजर आ रहा है। बेकरी आइटम तो सस्ते नहीं किया आपने,
मिठाई तो आपने सस्ती नहीं की। नहीं होनी, होनी भी नहीं है। नहीं देखे ना, अब इसके लिए कोई अलग से कोई पार्लियामेंट कोई डिबेट करेगी, इसके लिए कोई अलग से हुक्मनामा आएगा, तो महकमा बनेगा। ठीक है ना। बैंक में मौजूद है ना, जो प्राइस कंट्रोल जो इदारा नहीं, वो बना तो हुआ है, सब्जी और उनके वो दे देते हैं रोज की लिस्ट। ना ना, हाँ, रोजमर्रा सारी चीजों के रेट मुतय्यन करते हैं, नहीं, लेकिन नहीं हर बात के लिए महकमे तो नहीं आने ना। हमारी अपनी जिम्मेदारी भी तो है। जिम्मेदारी तो है कि हम 100 रुपए वाली चीज जो है अब 40 रुपए में जो खरीद रहे हैं, तो हम पब्लिक को अपने सार्फ को तो उतना फायदा पहुंचाएं। तायुन करने वाले तायुन कर दें, बेचने वालों से बिकवाएं, देखें होता है कि नहीं होता। उसके लिए तो भाई शेयर भाई ये तायुन जो जिसे तायुन करता है उसको भी भत्ता मिल जाता है शाम को, उसे कैसे रेट लिस्ट बनानी है? अच्छा, क्यों इस चीज को? हमारे टाइम जो है ना, टाइम जी। बढ़ता जा रहा है। सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद कौम होनी चाहिए, और सेहतमंद कौम के लिए खेलों का फरोग होना चाहिए। और हमारे जो हॉकी टीम है, कौमी हॉकी टीम, हमारा कौमी खेल हॉकी है ना, जी हाँ किया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में वो सिल्वर मेडल जीत कर आई, और मोहतरमा वजीर आला पंजाब ने उन्हें वो इनामात से नवाज दिया मलिक साहब। बहुत अच्छी बात है। कितने इनाम दिए? 3 करोड़ रुपए दिए हैं। और मेरे टैक्सों से दिए। बहुत वो अच्छी बात है। मुझे दवाई नहीं मिलती, आज 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, लइया में इंसुलिन दस्तयाब नहीं है। अभी चले जाए DSQ में, अभी चले जाए TSQ में, और बदबख्तों तुम क्रिकेट और उन चीजों पे 3-3 करोड़ रुपए इनाम दे रहे हो, दो ठीक है, लेकिन पहले बुनियादी इनाम तब दिए जाते हैं जब आपके पास फालतू पैसा हो। इनाम तब दिए जाते हैं जब आपके पास फालतू का खजाना पड़ा हुआ हो। यहाँ तो जरूरतों को जो है वो मुंह को आई हुई है, और इंसुलिन वो नहीं, चीज है। खान साहब आपने कसम उठाई है, कोई अच्छे काम की भी तारीफ नहीं करनी आपने। मुझे इसमें कौन सा अच्छा काम है, मुझे बता तो दे। लेकिन हमारे खेल के मैदान जो है वो आबाद होंगे, खेल के मैदान आबाद मेरा होंगे। 3 करोड़ रुपया उठा के आपने जनाब कारकर्दगी की बुनियाद पे शख्स को दे दिया, और मेरे मरीज जो है वो दिन रात इंसुलिन के चक्कर में 1500-1800 रुपए की मार्केट में है, और वो जो अस्पताल में छोटा सा हिस्सा हमारा आता था वो भी हमारा नहीं आ रहा है। 2 महीने हो गए लोगों जब को खेल के मैदान आबाद होंगे तो फिर बीमारियां नहीं होगी। अस्पताल गैर आबाद हो जाएंगे ना। जिनको हो चुकी है उनको तो दे दें, उनको दे और दें। जिनको हो चुकी है उनको तो दे दें, जिनको नहीं होनी वो तो बाद में हम देख लेंगे। महाराज अजमल लोहान साहब ने आपको प्रोग्राम में वेलकम करवाया, बहुत शुक्रिया अम्मार साहब। और उन्होंने ये कहा है कि जी आप लैया के अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं, और उस पर वो आपको सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत राना शुक्रिया। सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने रस्म साबिक आपको वेलकम कहा है, और दूसरा जनाब ये भी कहा है कि जी आपका जो प्रोग्राम है ये शानदार है। इशफाक अवान साहब ने पासपोर्ट सेंटरों पे होने वाली बदइस्लामी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बिल्कुल, आबिद अली कुरैशी साहब ने आपको वेलकम किया। बहुत शुक्रिया जी तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं मलिक साहब। जी हमारे जाते जाते हाँ जी। एक मेरी गुजारिश है, जाते आप जाते पहले गुजारिश नहीं, करें। वो जाते जाते FIR की खबर दे दें कि किसानों पे लैया में FIR हो गई। वो तो चलो ये तो दे दें, ये तो बता दें भाई साहब कितनी FIR हो गई, कितनी FIR मुस्लिम लीग किसान विंग के प्रेसिडेंट को भी पता चले कि भी जिला लिया में काश्तकारों पर FIR हो गई। मेरी इत्तला के मुताबिक कम से कम 2 FIR हो सकता है मलिक साहब के पास मेरे पास जाते। एक FIR की कापी मौजूद है। इमरान अहमद ये इंचार्ज पासपोर्ट सेंटर गोरट्टा है, और इन्होंने कहा है कि जी मैं ड्यूटी पर मौजूद था, और वो फला लोग आ गए और उन्होंने मुझे मारा पीटा, काहे से कार में मुदाखलत की है, और जनाब ये कहा है कि गोलियों को आग लगा दूंगा। लेने आया है या आग लगाने आया है? अब देखें ना, ये FIR का मतलब आप फरमाए, मुलाजा फरमाए। किसान परेशान है कि मैं बारदाना लेके अपनी गंदम जो है वो फरोख्त करूं, और ये साहब कहते हैं कि किसान है घर से इसलिए आया कि वो कहते हैं मैं तुम्हारी गंदम को मैं तुम्हारे बारदाने को आग लगा दूंगा, और चाकू से मेरे चेहरे पर हमला भी किया है। तो मेरे चेहरे पर गहरा जख्म आया, खून जारी हो गया, कान के पीछे भी जख्म आया, और ये जनाब सूरत हाल है। तो अब किसान की बात कोई नहीं है, उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा कि वो 15-20 दिनों से जो जलील हो रहा है उसका कोई मुकदमा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और चलो हमारे एक बात तो हो गई ना मलिक साहब जी,
کہ पीर जगह में अब भी अब FIR अब हुई है। पुलिस को जो है और महकमा फूड पास्को को एक वो ड्राफ्ट मिल गया है, इस ड्राफ्ट की रोशनी में अब FIR ही FIR होंगी। लिया टीवी HD के ब्रेकिंग न्यूज में आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लिया के किसानों पर FIR के इंदराज का सिलसिला शुरू हो हो चुका है और 2 FIR हो चुकी हैं और कल हम फिर आपको बताएंगे कि मजीद कितनी FIR है। अब ये मुस्तकिल मौजू रहेगा कि किसानों पर मजीद कितनी FIR होती है। जी। और जनाब, किसानों को और ज़राअत को तबाह हाल किस तरह किया जा रहा है, इस दफ़ा आपको मैं बताऊं कि पिछले साल की निस्बत इस दिन तक जो कपास की जो सोइंग थी वो 5,000 एकड़ कम, 10,000 एकड़ पर खड़े बागात हमारे काश्तकार ने तबाह कर खत्म कर। हाँ जी, ठीक है, किसान कपास कम हो रही है, गन्नम कम हो रही है, बागात उजाड़ दिए गए, तो फिर आप ये देखिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहे वही उसी तरफ हैं। ठीक है ना, गड़े में, गड़े में उसी गड़े में जहाँ पे फिर आज इज्तिमाई आज जो किसान से सस्ती गंदम लेकर अपना खजाना भर रहा है, अगले साल वो क्या करे? और वो मलिक साहब अगर ये सिलसिला न रुका, हाँ जी, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं एक पेशिंग भी छोटी सी कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से तौबा करते हुए हाँ जी, कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तानियों की इज्तिमाई खबरें बनेगी। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और न रुका और न रोका गया, ये ज़राअत को जिस अंदाज में तबाह कर रहे हैं मलिक साहब, आप इस 70% 75% जी, आबादी का इन्हिसार ज़राअत ज़राअत पे पर है है, बिल्कुल। और ज़राअत अगर आपकी जिंदगी से निकल गई, 26 करोड़ लोग खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? एक दूसरे का गोश्त खाएंगे हाँ, और एक दूसरे को नोचेंगे और इज्तिमाई खबरों के सिवा आपके पास हल क्या होगा? और फिर जिनके खजाने भरे हुए हैं वो मोटा से मस नहीं वो होगा। बचा से ये तो जनाब हमारे प्रोग्राम का जो है मलिक साहब, जी, जुनैद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। यहाँ मैं लिया टीवी HD देखने वाले अपने नाजरीन से सिर्फ ये बात कहूँगा कि गड्ढे में गिरने से बचने के लिए वो हक़ाइक़ की दुनिया पर तवज्जो दें। बिल्कुल। जब आप हक़ाइक़ की दुनिया पर तवज्जो देंगे तो फिर आप अपनी जो पसंदीदा, जो इर्द गिर्द की पसंदीदा शख्सियात जिनके हसार में आप डूबे हुए हैं, उनसे आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो एलीट क्लास है उसके हसार से जब हम निकल जाएंगे तो फिर हम अपना रास्ता खुद तलाश करेंगे और अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए फिर अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देंगे। आज की इस तमाम गुफ्तगू का जो निचोड़ यही है कि अपने ऊपर इन्हिसार करें और अपने लिए ही फैसले करें। बिल्कुल सही है। जो इर्द गिर्द के डोमिनेट शख्सियात हैं उनके फैसलों से बाहर निकलकर अपने और अपने बच्चों के लिए फैसले करें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए अपने मेजबान अब्दुल रहमान फरीदी को और अपने इनायतुल्लाह काशिफ, मकबूल इलाही को। अल्लाह हाफिज।